प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, सेशन 2022 और 23 में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर क्लास +2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक थिंग्स जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लास 10+1 में हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उसको रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट वेक्टर फॉर्म। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A cross B. Let A and B be two non-empty sets. Then their Cartesian product is denoted by A cross B and defined as A cross B is equal to x comma y. This is the set of the order pairs such that condition is the first element abscissa belongs to the set A and y belongs to the set B. वही ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें x जो है वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे बारी बारी सारे, एंड y जो है वो सेट B के एलिमेंट्स होंगे। तो लेट अस डिस्कस दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विद एन एग्जांपल। लेट A is equal to 1, 2 and 3. This is the roster form of a set. मीडियम ब्रैकेट के बीच में enclosed है elements, and set B is equal to 4, 5. There are 3 elements and there are 2 elements. So let us find the Cartesian product of A and B. So A cross B will be is equal to 1, 2, 3 set A cross set B, that is 4, 5. There will be 3 multiplied by 2, 6 order pair in A cross B. So they will be, first of all take 1 और 1 के साथ इन दोनों के ऑर्डर पेयर बना दो, 1, 4, 1, 5. Similarly taking 2, 2, 4 and 2, 5. Now taking the third element as abscissa, we get order pair 3, 4 and 3, 5. And counting में 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 order pair which are the elements of A cross B. So this is the procedure to find the Cartesian product of the two sets A and B. And this is the definition of the Cartesian product of the two sets, that it is the set of order pairs such that x belongs to the set A and y. Now let us discuss the definition of the relation. तो बच्चों, रिलेशन होता क्या है? इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन? तो रिलेशन के लिए बच्चों हमें दो सेट्स की जरूरत होती है, सेट ए एंड सेट बी। कई बार हम एक ही सेट में उसी सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन भी निकालते हैं। तो रिलेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, रिलेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए to the set B is the subset of A cross B. तो रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले A क्रॉस B निकालना होगा।
A क्रॉस B का पता होना चाहिए कि if A and B are two non-empty sets, then a relation is the subset of A cross B. So let number of the elements in the set A is equal to m. काउंटिंग जो है वो एलिमेंट सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इनकी संख्या। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा A क्रॉस B में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स m into n होंगे। देयर विल बी mn एलिमेंट्स इन द सेट A क्रॉस B। Then we know that the relation is the subset of A cross B. So therefore the number of subsets जो कि हमने 10+1 क्लास में पढ़ा है of any set will be equal to 2 raised to power total number of the elements present in that set. So number of the elements present in A cross B is mn. Therefore there will be 2 raised to power mn relations from the set A to the set B, because there will be 2 raised to power mn subsets of the set A cross B. Hence the number of the relations will be same as the number of the subsets of A cross B. So this is the definition of the relations, and there will be 2 raised to power mn relations from the set A to the set B if there are m elements in the set A and n elements in the set B. Therefore there will be m into n elements in the set A cross B. There are 3 main types of relations. The first is reflexive. So let A be only one set A is any set which is given to you, and the relation R is from A to A only, not A to B. B is not given. We can also define the relation from set A to B also. But in this case, let us discuss these definitions only in the set A. Let A be any set and a relation is from set A to A. Then reflexive, let A be any non-empty set, then a relation R from A to A is said to be reflexive if A comma A belongs to R. Abscissa and ordinate are both same, belongs to R for every A belongs to set A. सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो ए क्रॉस रिलेशन में जो है वो ऑर्डर पेयर जिसमें ए की वैल्यू लेट 1 इज द एलिमेंट, देन देयर शुड बी 1, 1 इन द रिलेशन. 2 is the element of set A, then 2, 2 will be there. If 3 is the element of the set A, then 3, 3 will be there in the relation. 3, 3 will be the element, will be the order pair of that relation. Then that relation is said to be reflexive. यदि एक भी ऑर्डर पेयर वहां पे इस प्रकार का नहीं है और वो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी. लेट अस सपोज सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, परंतु रिलेशन आर में 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, बट 4, 4 is not present in that relation, then we can say that this relation is not reflexive. रिफ्लेक्सिव तभी होगी जब चारों के चारों ऑर्डर पेयर जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेम हो, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 उस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अदरवाइज यदि एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो और वो एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Now let us discuss the second type, that is symmetric relation.
a relation, let A be any non-empty set, then a relation R from A to A is said to be symmetric if A comma B belongs to R. If, condition is if A comma B belongs to R, therefore B comma A must belongs to R. For A comma B both belongs to the set A. यदि किसी सेट में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 एंड रिलेशन में 1, 2 है, तो उस रिलेशन में 2, 1 भी होना चाहिए रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए। यदि उस रिलेशन R में 2, 3 है तो 3, 2 भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। यदि एक ऑर्डर पेयर 2, 3 है उस रिलेशन में, बट 3, 2 वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वी कैन से दैट this order pair 2, 3 contradict the definition of the symmetric relation, hence it is not symmetric। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन में जो है वो एलिमेंट्स निर्भर करते हैं कि आपके पास कौन सा ऑर्डर पेयर है प्रेजेंट है उस रिलेशन में। यदि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होगी, अदरवाइज सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन नहीं होगी। दैट्स ऑल। तो अब बच्चों हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशंस में 2 ऑर्डर पेयर चेक करने होते हैं। 2 ऑर्डर पेयर, यदि A be any non-empty set, then a relation R from A to A is said to be reflexive if A comma B belongs to R and B comma C ये सेम होने चाहिए। यदि ये भी प्रेजेंट है, यदि ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो A comma C जो है वो उस रिलेशन में 100% होना चाहिए। यदि ये दोनों हैं परंतु ये B से शुरू होने वाला यहां पे B कॉमन है, इसका ऑर्डिनेट है और इसका एब्सिसा है, ये प्रेजेंट है किसी रिलेशन में, परंतु A, C वहां पे नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। ये निर्भर करेगा कि आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट हैं। और यदि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिलेंगे नहीं दो कि जो कि इस डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करेंगे, तो वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज देयर आर नो 2 order pairs which contradict the definition of the transitivity। तो इस तरीके से बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 2 ऑर्डर पेयर जो है वो देखने होते हैं। A, B belongs to R and if B, C belongs to R, then A, C must belongs to that relation R, then that relation is said to be transitive। रिलेशन की कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज डिटरमाइन whether the relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 ... up to 14. There are 14 elements in the given set A. Therefore, defined as R is equal to set of order pair, and the condition is 3x minus y is equal to 0, where x and y belongs to the set A। तो बच्चों अब हम ये R जो है रिलेशन जो है वो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, कंडीशन दे रखी है x और y है। तो लेट अस फाइंड या कन्वर्ट दिस रिलेशन R इनटू रोस्टर फॉर्म। जिस प्रकार से सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिलेशंस को भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R इज इक्वल टू order pair x, y such that 3x minus y is equal to 0, where x, y belongs to the given set A।
x भी a में एलिमेंट होना चाहिए और y भी b का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा इस रिलेशन में जिसमें x या y की वैल्यू इस a के एलिमेंट से एक्स्ट्रा हो। तो r is equal to x comma y such that minus y is equal to minus 3x, minus and minus cancel, we get y is equal to 3x. This is the condition between abscissa and ordinate. Ordinate is 3 times that of the abscissa and x comma y belongs to a. तो आओ बच्चों हम बारी बारी x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू यहां से इस सेट A से पुट करनी है। पुटिंग x is equal to 1, we get y is equal to 3. Therefore, first element will be equal to 1, 3 because this 1 belongs to the set A and 3 also belongs to the set B. जब x 1 भरेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी उसके साथ। इसी प्रकार से जब y की वैल्यू x की वैल्यू 2 भरेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो 2, 6 also belongs to this relation R because these two elements also satisfied this condition as well as 2 and 6 both lies in the set A. Similarly, जब x 3 भरेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी और 3 and 9 both are in the set A and also satisfying this condition. जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 12 आएगी। 4 and 12 are also in the set A. और जब हम 5 यहां पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी, परंतु बच्चों ये 15 जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5,15 will not be the element of this relation R. There will be only 4 order pair 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. These are the 4 elements of this relation. तो इस रिलेशन को बच्चों हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ये रिलेशन जो है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 2, 3 and 4, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड द सेकंड एलिमेंट्स 3, 6, 9 and 12, दिस इज कॉल्ड range of the relation, and this set is from A to A cross A, then second set that is A is called codomain of the relation. तो बच्चों इस प्रकार से हम डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं किसी रिलेशन की डोमेन निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट एब्सिसा का एंड रेंज निकालने के लिए जो है वो ऑर्डिनेट्स का सेट बनाना है तो वो रेंज हो जाएगी। तो नाउ लेट अस डिस्कस दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन बिकम्स R is equal to 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. These are the 4 order pair of these relations. Now for reflexive, आओ बच्चों अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहां से डेफिनेशन से हमें क्लियर है कि फॉर इफ R is a relation in the set A where A is equal to this, then here A comma A does not belongs to R. For reflexive, A comma A must belongs to R. For every A belongs to the given set A. But here it contradicts the definition of the reflexive because no order pair in which abscissa and ordinate is same is present. One belongs to the set A, but 1, 1 does not belongs to the relation R. रिफ्लेक्सिव होने के लिए A के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 to 14, then 1, 1, 2, 2, 3, 3, these should be in this relation R. But there is no order pair in which abscissa and ordinate is same is present, hence it is not a reflexive relation. Because 1, 1 does not belongs to R,
2, 2 does not belongs to R for 1, 2 belongs to the given set A. Now let us check symmetric. तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए दो एलिमेंट जब हम लेंगे A एंड B, तो यदि ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू R हो तो B, A मस्ट बिलोंग्स टू R फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए A, B यदि रिलेशन R में है तो B, A भी होना चाहिए फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू द गिवन सेट A। व्हाट हियर A, B बिलोंग्स टू R, what B, A does not belongs to R. 1, 3 belongs to R, but 3, 1 does not belongs to this relation R. Hence, this relation is not symmetric. Example से भी clear है कि 1, 3 belongs to R, but 3, 1 does not belongs to R. Hence, it is not a symmetric relation. ये relation symmetric नहीं है। तो आओ बच्चों, अब हम इसे ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहां पर हमें दो ऑर्डर पेयर चेक करने हैं जिसमें जो है फर्स्ट का ऑर्डिनेट और सेकंड का एब्सिसा सेम हो। 1, 3 एंड 3, 9 ये हमें यहां पे मिल गए हैं, तो इसलिए हमें चेक करना होगा कि 1, 9 यहां पे प्रेजेंट है नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर ऐसे हमें मिल गए जहां पर फर्स्ट का ऑर्डिनेट, एक का ऑर्डिनेट और दूसरे का एब्सिसा सेम है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें एब्सिसा जो है वो 1 होना चाहिए और ऑर्डिनेट 9 होना चाहिए। इफ आइदर 1, 9 जो है वो इस रिलेशन में होता तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव है, परंतु ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ये दोनों ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन का। हेंस इट इज आल्सो नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लेट अस डिस्कस इट दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आप बच्चों हम चेक करें। For transitive, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, therefore A, C must belongs to R for A, B, C belongs to the given set A. But here there are two order pair in which 1, 3 belongs to R and 3, 9 belongs to R. ये दो ऑर्डर पेयर हमें बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। यदि ये नहीं होते तो वी कैन नॉट से दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव होनी थी। ये कंडीशन होती है कि यदि है तो ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो 1, 3 belongs to R, 3, 9 belongs to R. This implies 1, 9 must belongs to R, परंतु ये यहां पे नहीं है। 1, 9 यहां पे नहीं है, therefore it is not a transitive relation। इसलिए ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव रिलेशन A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies A, C must belongs to R, इसको ये कंट्राडिक्ट कर रही है ये एग्जांपल्स। हेंस इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों, यदि कोई रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यदि एक भी उसमें से सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल।